बाकी लोग कहाँ हैं? इतने ही थे कि है और एवढेच आहेत जेवायला. आर्ट स्टूडियो आप लोग ने आर्ट स्टूडियो Hello, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Good afternoon, everyone. Good afternoon. So let's start with today's practical. So yesterday we saw the practical ID3, right? Iterative dichotomizer 3, decision tree algorithm. Okay. And today we will learn C4.5, which is the extension of ID3. Okay. So let's do this practical. Now for doing this practical, again we are taking the inbuilt data set iris. Okay, जो फ्लावर स्पीशीज का था डेटा सेट वही यूज कर रहे हैं हम लोग. ओके और ये प्रैक्टिकल के लिए आपको एक लाइब्रेरी लगेगा, पैकेज लगेगा, विच इज RWeka. So first of all you have to install that package, library. So I'm doing library, but you install this package. It's capital R, capital WEKA, RWeka. Okay. Ma'am, you have not shared your screen. Okay, sorry. So everyone install this package RWeka. Actually, Weka is a data mining tool. Okay, you can do all this practical in Weka also using Weka, right? So earlier we were using this Weka, but now in your syllabus we are using this R. Okay, R programming because it is new. Okay. So Weka में बहुत easy था. Everything was very easy. Drag and drop करना था सिर्फ आपको. And your model is just created by few clicks. You don't have to write any code when you are using this Weka, right? So Weka में RWeka जो लाइब्रेरी यहाँ पे प्रोवाइड किया है R में, okay? इससे हम लोग ये C4.5 पैकेज जो हमें चाहिए एल्गोरिथम वो मिलेगा. ओके सो वो C4.5 का नाम Weka के अंदर था J48. ओके so J48 is nothing but C4.5. okay so we are using Weka का C4.5. so C4.5 का नाम उधर J48 था.
So we are using the same name J48. Okay. Everyone done with installation of this library? Yes? Error, eh? Hello. Okay, please see to it that you type the name correctly. So it's capital R and capital W. Okay.
Then load this package. We are also loading this data, iris. Okay. And directly we are applying this algorithm C4.5, which is J48. So capital J48, and then you have to specify the class in which you want to classify, right? So here our class is what? कौन सा क्लास है हमारा? iris data set में class कौन सा है? We want to classify into 3 types of species, right? So our class label is species. So you have to type the species, S capital SPE, species, and then you give the tilde sign, dot, comma, and then give the data. So data is equals to iris. ओके मैं यहाँ पे लाइब्रेरी पहले ये रन कर देती हूँ. आपका लोड हो रहा है आरवेक का? सबका लोड हुआ ये पैकेज आरवेक का? यस मैम. ओके क्योंकि मुझे यहाँ पे आर जावा का एरर दे रहा है, लोड नहीं हुआ मेरा पैकेज. ओके इसके लिए मुझे सेट एनवायरनमेंट करना पड़ेगा जो हमने कल किया था ना. तो किसी को एरर आ रहा है, देन यू डू दिस सेट एनवायरनमेंट, सेट एनवायरनमेंट and give the java home path. Mine is C colon program files java JRE. आपका जो पाथ रहेगा वो आपको देना है. जिसका लाइब्रेरी लोड नहीं हो रहा है वो ये एनवायरनमेंट सेट करो. मेरा यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है इसलिए मैं एरर दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ. JRE version is 1.8.0 underscore 291. Okay. ओके मेरा लाइब्रेरी लोड हो गया है. देन यू रन दिस J48. आई एम स्टोरिंग दिस इनटू वन वेरिएबल model, for example. Okay, and then you can do the summary of this model. Sorry. Okay, so when you see the summary, आपको यहाँ पे क्या दिखाएगा? Correctly classified instances. So how many instances the model has correctly classified? Okay, so it is 147. That means total आपके कितने instances थे? 150. 150 में से उसने correctly कितना classify किया? 147. That means 98% उसका क्या है? Accuracy है. Okay, accuracy is 98%. How many incorrectly classified? 3 instances. That means 2%. Okay. And various
measurements are given, error measurements, mean absolute error, root mean square error कितना है, right? ये सब error आपको यहाँ पे summary में दिखाता है. Okay, total number of instances are 150, and then this is the confusion matrix. So confusion matrix क्या होता है? Actual आपका जो data है, actual classes है, और prediction में कितना उसने बताया, राइट? हर एक स्पीशीज वाइज, जैसे हमारे 3 स्पीशीज है, राइट? फर्स्ट इज सेटोसा, सेकेंड इज वर्सिकलर, थर्ड इज वर्जिनिका, राइट? सो हाउ मेनी, टोटल 50 सेटोसा थे एक्चुअली, राइट? तो उसने सेटोसा करेक्टली प्रेडिक्ट किया. सो ऑल 50 इट हैज प्रेडिक्टेड करेक्टली. ओके, सेटोसा जो था स्पीशीज, उसने सेटोसा ही प्रेडिक्ट किया. ओके, ये आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स से पता चलेगा. एंड देन वर्सिकलर, सो वर्सिकलर उसने 49 प्रेडिक्ट किया. दैट मीन्स उसने 1 रॉन्गली प्रेडिक्ट किया एज अ वर्जिनिका. ओके, 1 वर्सिकलर को उसने एज अ वर्जिनिका प्रेडिक्ट किया. ओके, एंड देन वर्जिनिका 50 था, 50 में से उसने 48 करेक्टली प्रेडिक्ट किया, करेक्टली क्लासिफाई किया, एंड 2 उसने रॉन्गली क्लासिफाई किया एज अ वर्सिकलर. ओके, समझ में आ रहा है ये मैट्रिक्स? यस और नो? एवरीवन, रिपीट करूँ ये? हाँ, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स से आपको क्या पता चलता है कि मॉडल ने जो प्रेडिक्शन किया है, क्लासिफिकेशन किया है, और एक्चुअल उसमें क्या डिफरेंस है वो आपको पता चलता है. ओके, तो जैसे हमें क्लासिफाई करना था 3 क्लासेस में. कौन से 3 क्लासेस थे? कौन से थे? वर्जिनिका, सेटोसा एंड वर्सिकलर, राइट? तो ये तीनों के हमारे पास कितने टपल्स थे? 50-50 थे, राइट? तो अभी सेटोसा 50 था, तो मॉडल ने कितना प्रेडिक्ट किया कि ये स्पीशीज सेटोसा है, राइट? तो वो आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स से पता चलेगा. तो यहाँ पे आपको 50 दिखाया, राइट? दैट मीन्स रो जो सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका क्या है? एक्चुअल वैल्यू. एंड दिस इज कॉलम जो है वो क्या है? प्रेडिक्टेड वैल्यू. ओके, तो मतलब 50 एक्चुअली था और उसने प्रेडिक्ट कितना किया? 50 ही किया. दैट मीन्स उसने 50 आउट ऑफ 50 करेक्टली क्लासिफाई किया. ओके, 50 सेटोसा था और उसने 50 ही क्लासिफाई किया. ओके, एंड देन वर्सिकलर, तो वर्सिकलर अगेन वो 50 था, राइट? तो 50 में से उसने कितना करेक्टली क्लासिफाई किया? 49. तो उसने 1 रॉन्गली क्लासिफाई किया. उसने क्या रॉन्ग क्लासिफाई किया? 1 वर्सिकलर को बोला इट इज, सॉरी, हाँ, इट इज वर्जिनिका. एक वर्सिकलर को बोला कि ये वर्जिनिका है, बट एक्चुअल में वो क्या था? वर्सिकलर था, राइट? एंड थर्ड, उसने वर्जिनिका जो 50 था उसको 48 उसने करेक्टली क्लासिफाई किया आउट ऑफ 50. दैट मीन्स उसने 2 गलत क्लासिफाई किया. उसने 2 को क्या बोला? वर्सिकलर बोला. ओके, समझ में आया अभी ये सबको, राइट? तो this confusion matrix will tell you the actual and wrong prediction, right? कितना डिफरेंस है दोनों में. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मेन आउटपुट ऑफ योर प्रोग्राम. ओके, confusion matrix. So this we can see using this summary model. Okay, when you give the summary, you can see this error कितना है and accuracy कितना है. Every time we run a model, we want to check the accuracy of the model, right? So accuracy यहाँ पे दिखाया है. So correctly उसने कितना क्लासिफाई किया? 98%. That means accuracy कितना है मॉडल का? 98% accuracy है. Okay, तो accuracy 98% मतलब it is very good. 98 मतलब वेरी गुड, इट इज एक्सेप्टेबल. अगर ये एक्यूरेसी कम आता है इसका मतलब इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? 90 से कम आता है, इवन 92 इज नॉट गुड, राइट? इट इज ओके, राइट? तो
then we can tell that accuracy is not okay, and then we have to again do some modification in the data, and then we apply this model to our newly cleaned and modified data. Okay, so 98% is very good accuracy. So this is your C 4.5 uh, decision tree algorithm. Okay, you can predict values. Okay, so I'm predicting values. I'm creating one variable prediction. Okay, predict, and applying this model to on my first 4 columns. So all rows, comma matlab all rows, and then after that I want to specify column. So I want to apply this on all columns, right? Sorry. So I will specify uh, 1 to 4, because 1 to 4 columns are my data, input data, and fifth column is the क्लास लेवल और टारगेट डेटा, राइट? टारगेट डेटा हम लोग एज ए इनपुट नहीं देंगे ना, क्योंकि उसमें ही क्लासिफाई करना है, राइट? सो वी आर गिविंग ओनली फर्स्ट 4 columns. Okay, and then you can see the table, prediction, comma, कौन सा हमारा टारगेट है? स्पीशीज, डॉलर स्पीशीज. Okay, so table will give you this again confusion matrix. तो confusion matrix आप summary में भी आपको मिलेगा, और explicitly आपको बताना है, then you can use this table function. Okay, so table function से भी आपको confusion matrix मिल जाएगा, right? So this is our C 4.5 algorithm implementation. Done, everyone? Yes, ma'am. आप लोग का हो गया यहाँ पे? सबका हो गया? Done? क्या एरर है? चलो, we'll see next practical. KNN. Okay, K nearest neighbor, याद है ना? K nearest neighbor, हाँ हाँ. So again we are using this iris data. So we'll check this table, iris
species. Okay, so every species is 50, 50, 50. You can see the structure, any structure, कोई भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यूजिंग str. ओके, सो str एंड देन जो जिसका भी देखना है, राइट? सो मुझे देखना है स्पीशीज का. Okay, so it shows me the structure factor. It is a factor with 3 levels. Okay, 3 levels are Setosa, versicolor and virginica. Okay, and head I already told you, right? Head से क्या होगा? Head से क्या होगा? Head command से क्या होगा? Right. So top 6 values आपको retrieve करनी है, then you give the head command, right? Okay. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? आइरिस डेटा को मुझे रैंडमाइज करना है. ओके, क्योंकि वो बहुत ही सॉर्टेड है. फर्स्ट 50 इज सेटोसा, नेक्स्ट 50 इज वर्सिकलर, नेक्स्ट 50 इज वर्जिनिका, राइट? तो बहुत ही वो सॉर्टेड है, राइट, डेटा. तो मुझे उसमें रैंडम डेटा जनरेट करना है, राइट? तो उसके लिए मैं यहाँ पे सैम्पल मेथड यूज करूंगी. आई एम क्रिएटिंग वन वेरिएबल रैंडम and using this sample function I will randomly create data. So n rows, number of rows मुझे यहाँ पे देने हैं. So total number of rows are number of rows of IR. Okay, so iris data का, sorry, iris. Okay, I am taking iris, right? So first do number of rows of iris. Okay, and then I'm taking 90% of this data randomize. Okay, so 90% randomize करने के लिए you have to multiply this with 0.9. Okay, so again n row of iris. Okay, and this will generate the random sample. Okay, so data आपका अभी mix up हो गया है, right? See, data अभी आपका mix up हो गया है. Okay, right? नेक्स्ट थिंग, अभी जब आप डेटा देखोगे एक्चुअल, लेट मी सी दिस आइरिस डेटा. ओके, आइरिस डेटा मैं चेक कर रही हूँ. सॉरी, रैन है अभी, राइट? सो व्यू रैन. ओके, तो अभी यहाँ पे मिक्सअप है डेटा, राइट? जस्ट अ मिनट, मुझे इसका कंप्लीट डेटा देखना है. रैन ओके. ये जो आइरिस का डेटा है यहाँ पे, राइट? तो ये डेटा ना नॉर्मलाइज नहीं है. ये पेटल विड्थ जो है वो 0.2 से है. सबका यही आ रहा है ना, यही दिखा रहा है ना, 5.1 3.5 वैल्यूज, राइट? सो ये डेटा जो है ना वेरी हो रहा है बहुत ज्यादा, राइट? रेंज उसका जो है ना 0.2. सी दिस पेटल विड्थ 0.2, राइट? मैक्स इज व्हाट? 2.9, राइट? देन सेपल विड्थ जो है
सॉरी सेपल लेंथ जो है उसमें भी बहुत वेरिएशन है, राइट, वो डेटा में। ओके, सो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब डेटा में डिफरेंस रहता है ना, एक बहुत लार्ज स्केल है, दूसरा स्मॉल स्केल डेटा है, राइट, ऐसा अगर आपके पास डेटा है तो तभी हम लोग डेटा को क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। ओके, तो नॉर्मलाइज पहले करना जरूरी है डेटा को, और उसके बाद ही आप मॉडल उस पर अप्लाई करोगे तो वो करेक्ट आउटपुट देगा आपको, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको नॉर्मलाइज करेंगे। तो नॉर्मलाइज करने के लिए आई एम क्रिएटिंग वन फंक्शन नॉर्मलाइज। ओके, सो आई एम कॉलिंग दिस nr नॉर्मलाइज। जो फंक्शन है मैं उसको यहाँ पे nr में स्टोर कर रही हूँ। ओके, सॉरी, फंक्शन, so this will create a function. Okay, function आप जैसे normally function create करते हो ना, you give the parameter inside this parenthesis, right? So यहाँ पे argument हम लोग pass कर रहे हैं x, then you give this curly brackets, right? And then you write the return value whatever function is returning, right? Return. Okay, अभी मैं कौन सा नॉर्मलाइजेशन, हमने थियोरी में पढ़ा कि बहुत सारे टाइप के नॉर्मलाइजेशन है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन यूज कर रहे हैं। मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको क्लास में, लिखा रहेगा ना, अपने बुक में रहेगा आपके, राइट। वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, मीन मैक्स नॉर्मलाइजेशन। ओके, सो आई एम राइटिंग दिस फॉर्मूला, x माइनस मीन ऑफ x divided by, sorry, max of x minus mean of x. Okay, so this is the formula, x minus mean of x divided by max of x minus mean of x. Okay, okay, सब ब्रैकेट्स क्लोज है, चेक कर लो एक बार। ओके, आई एम रनिंग दिस फंक्शन। ओके, नाउ ये फंक्शन मुझे अप्लाई करना है हमारे आइरिस डेटा पे, क्योंकि मुझे उसको स्केलिंग करना है उस पे, राइट, उसको नॉर्मलाइज करना है, राइट। सो नॉर्मलाइज कौन से कॉलम्स को करना है, कौन से कॉलम्स को नॉर्मलाइज करना है डेटा को, ऑल द कॉलम्स, सबको करना है, यस और नो। नॉर्मलाइज करना मतलब स्केलिंग कर रहे हो आप, राइट। तो कौन से डेटा को आपको नॉर्मलाइज करना है, आइरिस के टोटल 5 कॉलम्स है, राइट। तो सभी कॉलम्स को आपको नॉर्मलाइज करना है। हाँ, स्पीशीज को नॉर्मलाइज कर सकते हो, क्यों, स्पीशीज को नॉर्मलाइज करना है, नहीं करना है, राइट, क्यों, क्योंकि नॉर्मलाइज हम लोग इंटीजर डेटा पे करते हैं, किस पे करते हैं, इंटीजर पे स्केलिंग करते हैं ना। और स्पीशीज हमारा क्या है, टारगेट वेरिएबल है, राइट। तो टारगेट वेरिएबल को हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को लेना देना है इनपुट डेटा से, राइट। टारगेट वेरिएबल से नहीं कुछ करना है, राइट। सो नॉर्मलाइज हमें इनपुट डेटा करना है, राइट। सो फर्स्ट 4 कॉलम जो है वो हमारा एक्चुअल इनपुट है। ओके, फर्स्ट 4 कॉलम्स, राइट। तो फर्स्ट 4 कॉलम्स को हम लोग नॉर्मलाइज करेंगे। सो वी आर अप्लाइंग दिस normal function, nr function, on first 4 columns of this iris. I'm calling this as iris norm. Okay, so you have to apply this as dot data dot frame and then use the function lapply. L means list. Okay, lapply, and then specify your data, which is iris, and you are applying this on all the rows and only first 4 columns. Okay, so columns are 1, 2, 3 and 4. Okay,
एंड देन फंक्शन नेम इज व्हाट, कौन सा फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, विच फंक्शन यू आर अप्लाइंग, जो अभी आपने क्रिएट किया ना एनआर, राइट, वो फंक्शन आप अप्लाई कर रहे हो. डन. ओके, अभी ये आपका नॉर्मलाइज हो गया. सो मिनिमम और मैक्सिमम जो रहेगा ना उसके हिसाब से उसने फंक्शन ये अप्लाई किया है, राइट, और ये वैल्यूज नॉर्मलाइज की है. ओके, डन. यहाँ तक हो गया सबका, नॉर्मलाइज हो गया. मैम वो सिर्फ सेपल लेंथ और सेपल विड्थ दिखा रहा है. पूछा भी नहीं. Okay, next we have to divide the data into trained data and test data. Okay, I'm calling it iris train. Okay, so I have to convert this iris norm data, right, iris norm, and I'm applying this random function. Okay, so 90% जो हमने randomize किया था
वो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ. ओके, एंड ऑल कॉलम्स, rows of ran and all columns. Okay, similarly test data, iris test. So बाकी का जो डेटा है that will go into test. So बाकी का डेटा मतलब माइनस रैन. ओके, माइनस रैन. 90% रेंडमाइज किया था, बाकी का जो 10% था that will go into test data. Okay, डन. क्या करूं? ठीक है आता. Then you can check this data. ओके, सो ट्रेन डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके, अभी KNN अप्लाई करने के लिए आपको पैकेज लगेगा क्लास. सो एवरीवन इंस्टॉल दिस पैकेज क्लास. इंस्टॉल पैकेज क्लास. हाँ, नहीं नहीं नहीं, स्मॉल है.
Okay, now apply this KNN. Calling this model KNN. Okay. Inside this, you have to specify train data and test data. So my train data is iris train, comma test data, which is iris test, comma CL. So क्लासिफिकेशन किस में करना है? स्पीशीज में, राइट? सो स्पीशीज आपको यहाँ पे देना पड़ेगा आइरिस. ओके, मैंने यहाँ पे, वेट अ मिनट, हमने यहाँ पे टारगेट यहाँ पे बताया नहीं है. टारगेट कौन सा है, राइट? सो टारगेट को मुझे अलग करना पड़ेगा. आइरिस ट्रेन टारगेट. तो माय फिफ्थ कॉलम ऑफ आइरिस डेटा इज टारगेट, राइट? सो फिफ्थ कॉलम को मैं यहाँ पे सेपरेट कर रही हूँ. आइरिस रैन फिफ्थ. ओके, तो रैंडमाइज किया था 90% जो डेटा, उसमें से फिफ्थ कॉलम जो है दैट इज माय ट्रेन टारगेट. ट्रेनिंग डेटा का टारगेट है. ओके, सिमिलरली टेस्ट डेटा का भी मुझे टारगेट बताना पड़ेगा, राइट? सो आइरिस टेस्ट टारगेट, आइरिस माइनस रैन फिफ्थ कॉलम. ओके, सो रैंडमाइज किया था उसका फिफ्थ कॉलम. माइनस रैन मतलब रैंडमाइज जो 90% किए थे, तो 10% जो बचे वो, राइट? वो मेरा टेस्ट में गया, राइट? तो यहाँ पे मुझे क्लास बताना है कि कौन से क्लास में मुझे क्लासिफाई करना है, राइट? तो क्लास कौन सा हुआ मेरा? आइरिस ट्रेन टारगेट हुआ, राइट? सो आई हैव टू स्पेसिफाई दिस क्लास हियर, आइरिस ट्रेन टारगेट. ये क्लास में मुझे क्लासिफाई करना है. ओके, एंड देन फाइनली KNN में के क्या होता है? नेबर्स, राइट? कितने नेबर्स से आपको क्लोजनेस देखना है, राइट? तो के यूजुअली हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं? वैल्यू ऑफ के. वैल्यू ऑफ के इज हाँ, तो डिपेंड ऑन डेटा सेट, राइट? बट मी एक रफली एक सांगितलेलं केची व्हॅल्यू काय घ्यायची त्याच्यासाठी. नाही, इट इज स्क्वेअर रूट ऑफ टोटल रोज. स्क्वेअर रूट ऑफ टोटल रोज. ओके, टोटल किती है? 150. स्क्वेअर रूट ऑफ 150 12 point something, 13 point something, right? So we will take 13. k का वैल्यू क्या लेंगे? 13. Okay, so now your model is created. KNN ने क्लासिफिकेशन कर दिया है. Okay, again you can check the summary. Okay, एंड एक्यूरेसी इसका देखना है. ओके, तो हम लोग पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे. सो कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करना है? पहले तो टेबल से कर सकते हो. तो टेबल में आपको क्या देना है? एक्चुअल वैल्यू एंड मॉडल का वैल्यू, राइट? सो गिव दिस मॉडल प्रेडिक्शन जो किया है, एंड देन आइरिस टेस्ट टारगेट. Okay, so again this shows your test target
10% जो रोज है उसमें मॉडल मैंने अप्लाई किया तो उसने प्रेडिक्शन क्या किया. सो 6 वर predicted as Setosa, 3 predicted as versicolor, and 6 predicted as Virginica. Okay, and I'm creating one function. To check the accuracy of this model. Okay, so I'm calling this function AC. Sorry, function so it is जो प्रेडिक्शन किया है डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्यूरेसी मिलेगा. यस और नो. प्रेडिक्शन किया है डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्यूरेसी. सो इट इज सम ऑफ number of row sums, okay, row sums of x divided by रुको सम ऑफ. सो ये जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट दिख रहे हैं 6, 3 and 6. So this is your predicted value, right? So that is your predicted, right? So we have to fetch that diagonal value. So sum of diagonal of x divided by sum of total rows of x into 100. एक मिनट, 1 इसका बंद नहीं है, ये क्लोज करना है, into 100. ओके, ये परसेंटेज में आपको एक्यूरेसी मिलेगा. run this. The function run करते हो, you have to select all the function, right, all the lines, and then run it. Okay, now this function is created, and then you can see this accuracy of our model. Okay, so x must be numeric. Row sum dot default, x must be numeric here. Row sum okay, it is row sums. Okay, row sums. Done. Sum of let me write this again. AC function x sum of
diagonal of x divided by sum of row sums, row sum and row sums. Okay, row sum x into 100. Row sum. आप लोग का हो रहा है कि एरर आ रहा है? Okay, everyone install this package Gmodels. Install this package Gmodel. हाँ,
ओके, जी मॉडल से आप क्रॉस टेबल ड्रॉ कर सकते हो. This is cross table is nothing again your confusion matrix. You don't have to specify this. Chi-square test यहाँ पे by default true होता है, तो उसको false किया है. So you don't have to write this. So this is optional. So in cross table we are giving this iris test target as a x axis and y में मॉडल देते हैं हम लोग टेबल में जैसे देते ना. हाँ नहीं, एक ही है, वो बड़ा दिख रहा है ना इसलिए एक ही टेबल है. हाँ, सेटोसाचे किती है, वर्सिकलर एंड वर्जिनिकाचे किती है. एक्यूरेसी क्यों नहीं दिखा रहा है, एक मिनट. हाँ, एक्यूरेसी के लिए चेक कर रही हूँ. There must be some way to check accuracy. फंक्शन कोई रहना चाहिए. Okay. ओके ओके, गॉट इट. क्यों नहीं दिखा रहा है वो, क्योंकि हमें एक्यूरेसी किसका चेक करना है, टेबल का करना है, और मैं यहाँ पे इनपुट क्या दे रही हूँ, मॉडल दे रही हूँ. इसीलिए वो एक्यूरेसी नहीं दिखा रहा है. राइट, सो मैं टेबल जो ये हमने क्रिएट किया था उसको मैं स्टोर कर रही हूँ यहाँ पे टी में. एंड अप्लाइंग दिस टी ओवर हियर. अच्छा, यहाँ पे एक्यूरेसी कितना दिखा रहा है, 100% दिखा रहा है आप लोग का, 100%. राइट, आप जो ये टेबल देखोगे ना, ये टेबल से भी पता चलेगा. टेबल जो मैंने यहाँ पे रन किया था, लेट मी रन दैट अगेन. टी, सो यहाँ पे रॉन्गली एक भी क्लासीफाई नहीं हुआ है, ये टेबल से ही पता चल रहा है ना. 6 सेटोसा, तो सेटोसा 6 क्लासीफाई हुआ है. वर्सी कलर 3 था तो
3 ही क्लासीफाई हुआ है वर्सिकल, राइट? एंड वर्जिनी का 6 था, तो वर्जिनी का भी 6 क्लासीफाई हुआ है, राइट? तो ये टेबल से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे रॉन्गली क्लासिफाइड एक भी नहीं है। ओके, सो अगेन वो एक्यूरेसी हम लोग यहाँ पे चेक किए यूजिंग दिस फंक्शन, एक्यूरेसी फंक्शन, राइट? सो एक्यूरेसी फंक्शन हमने टेबल पे अप्लाई किया, सो नाउ इट इज शोइंग योर एक्यूरेसी इज 100%। ओके, दैट मीन्स मॉडल ने सभी टपल्स को करेक्टली क्लासिफाई किया है। ओके, एक भी रॉन्ग क्लासिफिकेशन नहीं हुआ है। डन एवरीवन? सबका आ रहा है एक्यूरेसी? हाँ, रँडमाइज करतात ना, त्याला रँडमली कुठलाही त्याच्यावरून तुमचा डेटा ओके, अभी यहाँ पे के का वैल्यू क्या लिया था हमने? 13, राइट? तो चेंज करके देखो अभी फिर कितना एक्यूरेसी दिखा रहा है। सो डिपेंडिंग ऑन के वैल्यू उसका एक्यूरेसी चेंज होगा। के का वैल्यू चेंज करो। Suppose I am doing 10.
93 आया, 93% एक्यूरेसी हो गया। अगर मैं k का वैल्यू 10 ले रही हूँ ना तो 93 हो गया। If you are increasing a value by 15 for example, 15 कर देते हैं, हाँ ऍक्च्युली चेंज झालं पाहिजे। हाँ ओके मैंने 15 लिया तो वापस 100% दिखा रहा है अभी एक्यूरेसी। ऍक्च्युअल चेंज झालं पाहिजे। हाँ हाँ ओके एक्चुअली चेंज होना चाहिए। तो जब भी आप मॉडल बनाते हो ना तो आप के का अलग अलग वैल्यू लेके आप आपको एक्यूरेसी 100% मिलता है। वो वैल्यू आपको रखना है ओके जिसमें 100% मिले।
ओके चलो नेक्स्ट प्रैक्टिकल. के मीन्स क्लस्टरिंग. ओके के मीन्स में क्या था याद है? क्लस्टरिंग के मीन्स के क्या रहता है उसमें? व्हाट इज के? के इज द नंबर ऑफ क्लस्टर, राइट? जितने आपको क्लस्टर बनाने ना, दैट यू स्पेसिफाई यूजिंग के. ओके केएनएन में के क्या है? कितने नियरेस्ट नेबर आपको कंपेयर करने, राइट? सो नेबर्स, नंबर ऑफ नेबर्स. और के मीन्स ये क्लस्टरिंग एल्गोरिथम हो गया. ओके तो यहाँ पे हम लोग ग्रुपिंग बनाएंगे. तो हमारे पास अगेन हम लोग ये आइरिस का डेटा सेट यूज करेंगे. आइरिस डेटा सेट में हमें ग्रुपिंग करना है. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल दिस पैकेज. ये आपके पास है, पहले चेक करो स्टेट्स ये पैकेज है क्या, नहीं है तो इंस्टॉल करो. आई थिंक डिप्लॉयर है आपके पास एंड ggplot2 भी है, राइट? एवरीवन हो गया इंस्टॉल? स्टेट्स हो गया? नेट है क्या, चेक करो. डन. अभी टाइप मत करो, इतना ही करो. स्टेट्स ये करो, इंस्टॉल करो और लोड करो.
तीनों लोड करो। Okay, next I am selecting only first 4 columns of iris. First 4 मतलब input data आप लोग select कर रहे हो. Okay, I am taking this data into my data. So using select function, I am selecting only first 4 columns of this data. So main हमारा जो data है sepal length, sepal width, petal length, petal width, right? वो हमें extract करना है. Okay, so my data contains this four columns of iris. Okay, then I have to apply this k-means algorithm on this first 4 columns. Okay, so simply you have to type this k-means. K-means is a function which is available in this package stats. k-means के अंदर ब्रैकेट में आपको पास करना है आपका डेटा. Your data is my data here in this case. Okay, my data, comma, then you have to specify how many cluster you want to make. पूरे डेटा के कितने ग्रुपिंग्स करने हैं, राइट? सो मुझे 2 ग्रुप बनाने हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या डाला, k is equals to 2, राइट? सो यहाँ पे 2 लिया है मैंने. ओके, सो दिस विल क्रिएट clusters, 2 clusters of complete data. Check the data, check the model. तो पूरा उसने जो 2 क्लस्टर बनाए हैं, क्लस्टर नंबर आर 1 and 2. ओके, नंबर 1 क्लस्टर, नंबर 2 क्लस्टर. तो कौन से डेटा कौन से क्लस्टर में है वो यहाँ पे उसने दिखाया है, राइट? 1 मतलब ये सब जो रोज है वो फर्स्ट क्लस्टर में है, ये सब सेकेंड क्लस्टर में, बीच बीच में यहाँ पे 1 दिख रहा है, राइट? तो वो टपल्स कौन से क्लस्टर में गए हैं? 1 में गए हैं. ओके, सो दिस विल शो यू कौन से टपल्स कौन से क्लस्टर को बिलोंग करते हैं. ओके, सो दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल. सिंपली यू हैव टू यूज दिस k-means एंड इनसाइड यू हैव टू पास द डेटा जिसको आपको ग्रुपिंग करना है, एंड देन you have to specify how many cluster you want to make. Okay, अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूं तो वो 3 का ग्रुपिंग करेगा. Okay, so running this model again. Okay, तो उसने पूरे डेटा को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया और कौन से टपल कौन से ग्रुप में है वो यहाँ पे दिखाया है. तो फर्स्ट टपल गया तो थर्ड क्लस्टर में, फिर ये फर्स्ट में गया, राइट? लाइकवाइज. सो दिस इज कॉल्ड एज क्लस्टरिंग वेक्टर. ओके, और जो हम लोग मीन निकालते थे ना, हर एक इटरेशन में मीन निकालते थे ना, वो मीन यहाँ पे बताया है कि उसने कौन सा मीन लिया है, राइट? सो दिस आर क्लस्टर मीन्स. And this is within cluster sum of squares.
So you can check individual element of this model. Like you can check how many clusters are there, what are the centers, what are the measure of withinness, right? So you have to just type this model dollar and then attribute name. Okay, suppose I want to check the cluster, how many clusters are there, then I will type model dollar cluster. Okay, so यहाँ पे cluster बता रहे हैं. Then size of the cluster, so model dollar size, that means first cluster के अंदर कितने टपल्स हैं, 21, सेकेंड के अंदर 96 एंड थर्ड के अंदर 33. ऐसे उसने टोटल क्लस्टर बनाया है, साइज बनाई है. देन यू कैन चेक दिस टेबल. सो 17 सेटोसा जो थे, राइट, वो फर्स्ट क्लस्टर में गए. देन फर्स्ट क्लस्टर में 4 वर्सिकलर है. ओके, सेकेंड क्लस्टर के अंदर 46 वर्सिकलर है, 50 वर्जिनिका है, एंड थर्ड क्लस्टर के अंदर 33 सेटोसा है. ओके, तो ये मैंने क्या देखा कि स्पीशीज वाइज उसने पहले क्लस्टर में स्पीशीज वाइज डेटा क्या है, सेकेंड क्लस्टर में स्पीशीज वाइज डेटा क्या है, राइट? वो आप यहाँ पे टेबल के थ्रू चेक कर सकते हो. कहाँ मिलेगा अपने क्या? फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का रिजल्ट? सर के पास. सर ही दे रहे हैं. डन, समझा ये सबको? के मीन्स, हाँ, प्लॉट आप लोग यहाँ पे बना सकते हो. मॉडल, उसके लिए फैक्टर में इसको कन्वर्ट किया है क्लस्टर को, एंड देन यू अप्लाई दिस ggplot. सो लोड दिस ggplot फर्स्ट लाइब्रेरी. ओके, तो 3 क्लस्टर यहाँ पे दिखा रहे हैं. रेड वाला क्लस्टर 1 है, ग्रीन वाला क्लस्टर 2 है, एंड ब्लू वाला क्लस्टर 3 है. ओके, तो क्लस्टर 3 का यहाँ पे मोस्टली डेटा है, और उसमें रेड वाला मतलब फर्स्ट क्लस्टर का भी डेटा मिक्स है, राइट? सो रेड इज क्लस्टर 1, ब्लू इज क्लस्टर 3, और ये ग्रीन जो दिख रहा है दैट इज क्लस्टर 2. सो मोस्टली डेटा उसने क्या किया है, सेकेंड क्लस्टर में डाला है, राइट? सो ये ग्रुपिंग उसने कैसे किया है, डेटा का मीन निकाल के, राइट? हम लोग जो मीन निकाल रहे थे ना, हमने पूरा सम सॉल्व किया, राइट? मीन निकाल के फिर हम डिफरेंस फाइंड कर रहे थे. वो डिस्टेंस पे उसने ये क्लस्टर्स बनाए हैं. ओके, कौन से बेस पे बनाए? डेटा का मीन निकाल के क्लस्टर का, और फिर उसका रैंडमली हम लोग को सिलेक्ट करते थे. स्टार्टिंग में याद है, मीन हमें पहले रैंडमली सिलेक्ट करना पड़ता था, राइट? तो इसने भी क्या किया, रैंडमली 3, अगर 3 क्लस्टर बताया है तो 3 उसने मीन रैंडमली सिलेक्ट किया, और उसके हिसाब से सबका डिस्टेंस फाइंड किया, और फिर उसने इटरेटिवली ये प्रोसेस किया, और फिर उसको पता चला कि फाइनल अभी चेंज नहीं हो रहा है, तो उसने बताया कि कौन से क्लस्टर में अभी फाइनल डेटा है. ओके, so this diagram shows the distribution of data in each and every clusters. Okay, clear everyone? huh?
ggplot, iris, create aesthetic plot, AES for aesthetic, petal length and petal width का मैंने यहाँ पे किया है. You can give any input here. You can give sepal length, sepal width, anything, right? तो जिसका आपको देखना है उस हिसाब से आप यहाँ पे x and y एक्सिस का देखो, एट्रीब्यूट दो, यहाँ पे स्पेसिफाई करो, एंड देन कलर आपको, क्योंकि अलग अलग क्लस्टर आइडेंटिफाई होना चाहिए इसलिए यहाँ पे कलर दिया है. ओके, सो कलर इज इक्वल टू, किसको कलर देना है? मॉडल क्लस्टर्स को, राइट? सो मॉडल क्लस्टर को मैंने कलर दिया यहाँ पे, एंड देन प्लस जियोम पॉइंट. डन. आपका अलग आ सकता है, और टोटल क्लस्टर में इतने में तो अलग दिखा सकता है. आप कितना आ रहा है आपका क्लस्टर 1 में? कितने हैं? नहीं, टेबल, तो सबका टेबल अलग हो सकता है क्योंकि वो रैंडमली भी मीन लेता है. आपका अलग दिखता है. दो क्लस्टर में ना तीन लोग हैं और अलग से दिखाएगा.
ओके चलो, तो आपका यहाँ पे खत्म हो गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अभी बाकी है, बट वो नेक्स्ट टाइम लेंगे हम लोग। क्लस्टरिंग में कल 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 हाँ, उद्या फ्रायडेला येणार आहेत ना? फ्रायडेला ओके ओके, हाँ ठीक है, कल बाकी का हम लोग फिनिश कर देंगे। एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग बाकी है, तो वो कल करेंगे। ओके, थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों कल देख लेंगे। ओके, उद्या या आता, एक दिवसासाठी कशाला हे करता। लास्ट आहे माझा लेक्चर। कोण फर्स्ट कोणाचा आहे? ओके, मैं अटेंडेंस लेके आती हूँ। Yes, online students, any doubt? No, ma'am. Yes, बोलो। अभी किसका लेक्चर है आपका? ओके, प्रैक्टिकल एग्जाम में मैं आप लोग को बता दूं, प्रैक्टिकल एग्जाम में कोई भी डेटा सेट आ सकता है। ओके, सो डोंट कंसीडर के सिर्फ आइरिस आएगा, आपने जिस पे नहीं परफॉर्म किया है वो डेटा भी आ सकता है। ओके, सो बी प्रिपेयर। मैम यस, मैम थियरी के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए कितने यूनिट्स है? अरे हाँ हाँ हाँ, मैंने बताया नहीं ना, 2 यूनिट है थियरी यूनिट टेस्ट का, थर्ड एंड फोर्थ। हाँ,
मतलब साधना मैम का अलग रहेगा और मेरा भी अलग। उनका फर्स्ट 2 दिया है ना उन्होंने। हाँ, तो मेरा 3 एंड 4 है। मतलब टोटल आपके 4 यूनिट है। हाँ, हाँ, मैम हाँ, बोलो। मैम आपके सम्स है ना यूनिट टेस्ट में? हाँ, हाँ, है। टोटल 4। हाँ, फर्स्ट 2 4। नोट्स म्हणजे मी लिहिलेलं आहे तेच आहे या बुक मध्ये। हेच आहे। ते आता लास्ट टाइमच आहे। हे आहे, बाकी काही नाही आहे माझ्याकडे। हा, 20। कोडिंग प्रॅक्टिकल नाही आहे याच्यात, थिअरी आहे। हा, 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 प्रॉब्लेम्स आहे माझ्यामध्ये, तेच असणार आहे। थिअरी नाही आहे। हा, म्हणजे फक्त युनिट 3 लाच फक्त दिले, बाकी सगळे प्रॉब्लेम सगळ्याला 3 4 5 फक्त 6 युनिट थिअरी देते तुम्हाला। त्याचं राहिलंय ना म्हणून। फोर्थ आणि फिफ्थ युनिट मध्ये सगळे आपण एक्झाम्पलच केले ते। हा, ते एक्झाम्पलच आहे फक्त। विचारणार व्हॉट इज दिस अँड देन सॉल्व दिस असं। हो, पण ठीक आहे, तुम्ही केलेले ना जेवढे असाइनमेंट मध्ये तेच सगळे असणार आहे। ऑनलाइनच है। हाँ, चलो अटेंडेंस दे दो मुझे। ऑनलाइन स्टूडेंट, जस्ट वेट। किसके पास है अटेंडेंस? दे दो ना। कुठलं? ए डिव्हिजन आहे काय? अनिश कोल 15 15 ना? आणि आज 23rd आहे ना? हो 23rd ओके। हाँ, आणि भाग्यश्री पाटील बी। ओके, इथे आदित्य सावंत आणि ऋतिका पाटील। आदित्य। चौथा नंबर। ओके। आणि कोण? प्रथमेश्वर बी मध्ये। प्रथमेश पवार झाला। ऋतिका घाग डिवीजन आहे। ही ऋतिका नाही, आज एच आहे, एच बी मध्ये, ए मध्ये एच ए माझं लाव ना प्रथमेश पवार। लावली। ऋतिका घाग नाही एच मध्ये, एच एच पासून आहे। अच्छा, ओके। ऋतिका मैम। ओके, चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका अटेंडेंस दे दो। ए डिवीजन
अथर्व भरते डिवीजन आहे. अथर्व. Next. Isha Gupta, roll number 48. Next. Kanchan Pathare, roll number 52, division A. Okay, next. Abhishek Joshi, roll number 2. 02, right? Yeah, ma'am. Okay, next. Roll number 57, division A. 57, Lalita, right? Yes, ma'am. Okay, next. Next. सलोनी तळेकर डिविजन बी. सलोनी. हाँ करो. Next. सायली परब डिविजन बी. Saili. Okay, next. राधिका भिडे डिवीजन बी. Next. 89 roll number, division B. 89. Division B, na? Yes, ma'am. Okay, done. Next. प्रसाद रोकडे डिवीजन बी 79. Okay, next. Okay, next.